Hello students, I'm Vasudha Sharma and welcome back to my channel Success with Science. मैंने आपसे पहले ही कहा था हम इस चैनल में क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे, right? So the first chapter that I'm going to take up is chemical reactions and equations. आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख लिया है, right? So there's an advice from my side to all of you. जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ चेंजेस. जस्ट वॉच हियर, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ चेंजेस. ओके, दिस इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस, chemical changes. Second is balancing of chemical equations. As the topic reads, chemical reactions and equations. तो इन्हें हम balance करना सीखेंगे. Now this is a very very important topic and one short question from this topic is there. Either direct or indirect. कई बार question के बीच में ही होता है और कई बार direct होता है. Balance the equations. Okay. Now next is types of chemical reactions. Can you relate the topic now? Now this is direct with the name of the topic. जब हम types of chemical reactions करेंगे इसमें हम 4 तरह के reactions पढ़ेंगे. First, combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions. और जब मैं आपको double displacement reactions पढ़ाऊंगी वहाँ पे मैं आपको precipitation reactions के बारे में भी information दूंगी. Alright? Now the next type of reactions we'll cover up is redox reactions. Now as the name suggests, what is redox? Is it something very new, very difficult? No. It is something which you have already studied. Reduction oxidation पढ़ा है ना? So this redox comes from there. Redox, RED, reduction, OX, oxidation. ये वो reactions हैं जिनमें reduction भी हो रही है, oxidation भी हो रही है at the same time. Okay? The next topic is corrosion. ये हम अपनी जूनियर क्लासेस में तो पढ़ते ही आए हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम corrosion में क्या एक्स्ट्रा जान सकते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. And then the last topic, rancidity. When you study rancidity, I will relate it to your packet of chips which you all love to eat. And when you open it, there's some gas which comes out. अब वो गैस कौन सी है और क्यों भरी गई है वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग. साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होता है. ओके, एंड इट मेक्स योर लाइफ सिंपल एज वेल. ओके, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्विकली नोट डाउन द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सबसे पहले आप ये टॉपिक्स लिख लीजिए एंड आई जस्ट मूव फॉर असाइड फॉर अ सेकेंड. So the first topic that I told you was types of changes. अब हम सबसे पहले types of changes पढ़ेंगे. Now types of changes we can divide into 2 categories, physical changes और chemical changes. अब physical changes कौन से changes होते हैं? Physical changes are the changes in which only physical properties change. Chemical properties change नहीं होती. इसमें कोई new substance form नहीं होता, right? ये वाले changes reverse भी हो जाते हैं और इन चेंजेस में एनर्जी अब्सॉर्ब और एमिटेड इज नेग्लिजिबल, थोड़ी सी होती है, राइट? बट द केमिकल चेंजेस, दीज आर द चेंजेस इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बर्न पेपर, क्या मैं उससे वापस पेपर बना सकती हूँ? एक बार जल गया सो इट्स बर्न, इट कांट बी रिवर्स. नाउ इन दिस द केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, इट इज इरिवर्सिबल. क्या आप जले हुए पेपर से वापस पेपर बना सकते हो? नहीं ना. सो लाइक दैट. And the energy absorbed or emitted is not just negligible, it is quite a lot. Okay, so let us quickly note down the 4 main differences between physical changes and in contrast to that chemical changes. Alright, so मैंने आपको explain किया what are physical changes, what are chemical changes. So again I have saved your time, I have written down on my board, right? Now see, physical changes I told you, इसमें physical properties change होती हैं, सिर्फ physical properties. You can note that down. इसमें no new substance formed, it is reversible,
energy emitted or absorbed is negligible, very small. Now let us take up some examples. But before that, हम कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको देख के कैसे गैस कर सकते हैं कि दिस इज फिजिकल और केमिकल? एविडेंस क्या है कि जो चेंज हमारे सामने हो रहा है वो फिजिकल है कि केमिकल है? वो एविडेंसेस हम नोट करेंगे. अगर सिर्फ फिजिकल चेंज हो, स्टेट ही चेंज हो रही है, जैसे मैंने आइस को फ्रिज में से निकाला, टेबल पे रखा, इट टर्न्स इनटू वाटर, इट टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट वाज जस्ट फिजिकल चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, राइट? तो फिजिकल चेंज में आएगा वो. इफ देर इज जस्ट अ कलर चेंज, इट कैन बी फिजिकल. इफ देर इज जस्ट चेंज ऑफ शेप, आई स्ट्रेच अ रबर बैंड और I bend a wire, that is a physical change. And appearance may change, the look of the object may change, right? That is all physical changes. These are not chemical changes. Now let us talk about chemical changes. इसमें हमारी physical properties के साथ साथ chemical properties बदल जाती हैं. Okay? जो नया substance form हुआ वो new substance पहले वाले substance के जैसे नहीं दिखता. सेकेंड, ये वापस चेंज नहीं हो सकता. एज आई टोल्ड यू, आपने कोयला जला दिया, यू बर्न कोल, नाउ व्हाट हैपेंड? कैन यू टर्न इट बैक इनटू कोल अगेन? नो, इट इज इरिवर्सिबल. इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड इज कंसिडरेबल, मतलब वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है. लाइक बर्निंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. इसके एविडेंसेस क्या है? किसी भी रिएक्शन, कभी आप लैब में जाओ और कोई रिएक्शन करो, उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, यू नो, एफर्वेसेंस के साथ हो रही है या जस्ट बबल्स के साथ हो रही है. नाउ एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल चेंज. फिर आप देख रहे हो मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है पीपीटी. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट. कई बार हम क्या करते हैं, दो क्लियर सॉल्यूशंस लिए हमने, किसी सॉल्ट का और एक और सॉल्ट का, जब उनको मिक्स किया तो क्लियर नहीं रहा, मिल्की हो गया या येलो कलर हो गया उसका. तो वो जो सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड उसमें फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हुआ तो मतलब इट्स अ केमिकल चेंज. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स. ओके? और अगर एनर्जी निकल रही है, if it is emitted, for example exothermic reactions, या absorb कर रहे हैं, वो reactions भी सब chemical changes ही होते हैं. Alright, now before I go further, let us take some changes, the examples. कुछ ऐसे examples जिनमें आप confuse हो सकते हो कि एग्जाम में ये आ गया तो ये फिजिकल है कि केमिकल है. चलिए हम पहले कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेते हैं. Now if I say melting of ice, आप सबको मालूम है ये तो फिजिकल चेंज है. If I say tearing of paper, आपको मालूम है ये physical change है. Now children, when this question is asked in the board examination, वहाँ आपको reason देना है. Supposing you are asked burning of wood is physical or chemical, you say it is chemical because chemical properties changed, new substance formed, irreversible, energy changes are there. तो पूरा एक्सप्लेन करना है आपने कि आपने उसको केमिकल क्यों बोला और अगर फिजिकल बोला तो फिजिकल क्यों बोला. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ मिल्क. अब हम सोचते हैं बॉइलिंग ऑफ मिल्क फिजिकल है कि केमिकल है, हमने तो हीट किया है, बॉयल हो गया है. नाउ आई विल टेल यू, इट इज फिजिकल चेंज. रिमेंबर, इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. उसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है. बट व्हेन यू चेंज मिल्क टू कर्ड, आपने दूध से दही बनाया, मम्मा ने दूध से दही जमाया जो आपने बड़ी खुशी से खाया. नाउ दैट कर्ड, टर्निंग ऑफ कर्ड कम्स अंडर केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ऑलराइट, नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. बर्निंग ऑफ कैंडल. हमने एक मोमबत्ती जलाई, ये फिजिकल है कि केमिकल है? सोचना पड़ेगा. अगर नाउ हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? हियर यू विल राइट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इन अ कैंडल. जब हमने कैंडल जलाया और उसका वैक्स मेल्ट हुआ, दैट इज फिजिकल. बट द बर्निंग ऑफ थ्रेड एंड द वैक्स, जो बर्न हो गया, दैट इज केमिकल. सो इफ आई से बर्निंग ऑफ कैंडल, देन यू विल राइट बोथ
In burning of candle, melting of wax, physical, but burning of thread, chemical. Okay. Now I'll take one more example. Again, because children tend to get confused in such questions. If I say cutting of wood, लकड़ी को काटना, that's physical. But if I say cutting of a tree, आपने एक जिंदा पेड़ को काट दिया, that is chemical, because now the tree dies. But the tree which is already dead, if you're cutting that further, that's okay. That's a physical change. So are you clear with the topic now? I'm sure आपको मेरी इस वीडियो से ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. What are physical changes? What are chemical changes? How to attempt this question? इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको चेंज दिया होता है एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ये फिजिकल है कि केमिकल है. और जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसके साथ रीजन जरूर लिखना. रीजन में आप ये फिजिकल में लिखिए और ये केमिकल में लिखिए. अगर आपसे एविडेंस पूछा जाए तो आप कौन से एविडेंसेस दोगे, ये वाले. ऑलराइट, अब आपको चेंजेस भी पता है, उनके एविडेंसेस भी पता है और सब के सब एग्जाम्पल्स भी आपको आ जाने चाहिए. नाउ व्हेनेवर आई गिव यू एन एग्जाम्पल यू शुड क्विकली से दिस इज फिजिकल और दिस इज केमिकल विद द रीजंस. Now I give you few seconds. You can take a picture of this board again, right? And please note it down in your notebooks. इसे भी आप notebooks में लिख लीजिएगा. This thing is not given in NCERT, but please take it down. So children, the next topic, important topic of this chapter, balancing of chemical equations. तो आपने जूनियर क्लासेस में क्लास 9th में इक्वेशंस देखी होंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट लेट मी गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन. जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम वो नई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं. सबसे पहले अल्फाबेट, जैसे ABCDEFGH, ये सारे अल्फाबेट्स हैं. पहले हम उससे अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद उससे वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, राइट. और उसके बाद हम उससे सेंटेंस, वाक्य बनाते हैं. उन वाक्यों से हम एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखते हैं. अब केमिस्ट्री को भी आप एक नई भाषा समझो. इसमें सबसे पहले हमारे शब्द, हमारे अल्फाबेट्स क्या हैं. हमारे अल्फाबेट्स हैं द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. एंड आई विल गिव यू अ चार्ट which will give you all the element symbols, all the polyatomic ions with their valencies. वो मैं आपको एक चार्ट दूंगी, वो आपको याद करना चाहिए. वो याद करने से आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. कोई भी इक्वेशन लिख सकोगे, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकोगे. एंड इफ यू डिमांड आई कैन गिव यू वन सेशन ऑन हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. ओके, सो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन. अब जब हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा, मतलब हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज बनाना सीखा. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसे बैलेंस कैसे करते हैं, राइट. बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्स्ट लेट अस सी कि एक इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है. वन इक्वेशन टेल्स अस दैट द रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टुगेदर अंडर सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम इस एरो के ऊपर लिख देते हैं. अंडर दोज कंडीशंस और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. लेकिन कितने रिएक्टेंट्स ने कितने प्रोडक्ट बनाए, या कितने नंबर ऑफ एटम्स ने कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाया, पार्टिकल या मॉलिक्यूल बनाए, वो हमें कैसे पता चलेगा. फॉर दैट वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं है इट्स नॉट कंप्लीट. सो हाउ डू वी बैलेंस द इक्वेशंस. इसके कुछ स्टेप्स हैं. ये आप फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिस कर लेना और जब तक आपका सेशन एंड होगा यू विल बी वेरी क्विक. आप फटाफट खुद ही कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बैलेंसिंग सीख भी गए, राइट. नाउ फर्स्ट स्टेप, राइट द स्केलेटन ऑफ द केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट राइट द स्केलेटन मीन्स आप पहले बेसिक इक्वेशन लिखिए. फॉर एग्जाम्पल आई से आयरन reacts with water or moisture to form Fe3O4, that is ferric oxide, plus hydrogen gases liberated. Okay, now how to balance. First step, we are going to make imaginary boxes outside. Imaginary boxes, or you can make them with pencil. या तो pencil से बना लीजिए या हम इस पे imaginary boxes
अपने माइंड में ही बना लेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप अब आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। लेट अस चेक। अब आप मेरे साथ साथ गैस कीजिए। यहाँ पे हमारे पास है आयरन, और क्या है, हाइड्रोजन, नॉट वाटर, हाइड्रोजन यू विल राइट, और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपकी इक्वेशन ही गलत है। कोई एलिमेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे राइट हैंड साइड पे होना ही है। इफ इट इज नॉट देयर योर इक्वेशन इज रॉन्ग। ओके, बट हमारी इक्वेशन तो कुछ सही लग रही है बिकॉज वी हैव दिस इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो कॉलम्स बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS RHS। चलिए अब हम देखते हैं आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं, ये तो 1 ही है, सो 1। आयरन राइट हैंड साइड पे कितने हैं, वी हैव Fe3 यानी 3। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 2, और हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन ओनली 1, ऑक्सीजन 4। सो चिल्ड्रन, अगर ये नंबर्स बराबर हों सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, ओनली देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। जब तक ये बराबर नहीं है आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। नाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी विल यूज अ वेरी इजी हिट एंड ट्राई मेथड। इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, हिट करना है, ट्राई करना है नंबर्स के साथ, वी हैव टू प्ले विद नंबर्स एंड वी विल बैलेंस द इक्वेशन। ओके, नाउ आई सी दैट हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन जब मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी हो सकता है उस वक्त हाइड्रोजन गेट्स इम्बैलेंस्ड, राइट। नाउ लेट मी स्टार्ट विद ऑक्सीजन हियर। Now because see iron can be balanced, iron is single, it can be balanced. I am starting with oxygen here. We have 4 over here but just 1 here. Let me multiply this with 4. I am multiplying this with 4. ठीक है, अब हमने जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब जो हम नंबर लगाएंगे, आप कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट पुट अ नंबर ऑन द फुट ऑफ द एटम. यू कैन नॉट चेंज द कंपाउंड. आप ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे लगा सकते हो, और जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हो तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने O4 तो मुझे 4 यहां लगाना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 4 लगाया हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया. सो नाउ हाइड्रोजन बिकम्स 2 4s are 8, राइट. हाइड्रोजन हैज बिकम 8 बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड. नाउ आई टोल्ड यू जब हम बैलेंस करेंगे तो कुछ ऑलरेडी बैलेंस था वो इनबैलेंस हो सकता है. नाउ लेट मी सी, जब हाइड्रोजन को अब हम बैलेंस करेंगे तो हियर इट इज 4 2s are 8. अगर मैं यहाँ इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4, what will I get? 8. Alright. Now the only thing left is iron. If I put a 3 there, I multiply this with 3, I get a 3 there. Now my equation is balanced. This is how we balance chemical equations. It's not at all difficult. जब तक आप सेशन के एंड में पहुंचोगे आप बहुत इजीली इक्वेशंस को बैलेंस कर सकोगे, राइट. सो द फाइनल इक्वेशन इज 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2. Now one more thing, जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो जहां पे भी गैसेस इवॉल्व होती है उसके लिए एक अपवर्ड एरो जरूर लगाइए. अपवर्ड एरो, evolution of gas. I'll write it here. Upward arrow is evolution of gas. Downward arrow is formation of precipitate. जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और प्रेसिपिटेट बनेगा वहां हम सिर्फ एक एरो लगा देंगे, दैट विल शो इट्स प्रेसिपिटेशन. एरो के ऊपर जो भी लिखोगे वो कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस होंगी. कोई कैटलिस्ट लिया या टेम्परेचर डाला है, हीट अप किया है या प्रेशर चेंज किया है, all that will come in on this arrow. So this equation is complete when you write the names. अगर आपसे कोई बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने को बोला एग्जाम में तो आप इक्वेशन के साथ साथ नीचे लिखिए
write down the names, ferric oxide, hydrogen gas liberated, okay, and the arrow upwards indicates कि आपको मालूम है ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. तो जब तक आप इनकी स्टेट नेम्स नहीं लिखोगे, योर इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट. सो दीज एरोज आर ऑल्सो सिंबल्स. अब इस एक इक्वेशन से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्लेस की. इट्स अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सो व्हाई इज इक्वेशन इंपॉर्टेंट? Equation is very important because you represent or you give a lot of information in a small line. आप एक छोटी सी लाइन में बहुत कुछ बता रहे हो कि आयरन मॉइस्चर के साथ reacted and it gave ferric oxide which is brownish rusty color and hydrogen gas is liberated. See, so many sentences but just one equation. है ना फायदे की बात कि हम इक्वेशन में इतना कुछ छोटी सी इक्वेशन में लिखते हैं, कितनी टाइम सेविंग है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल सेंटेंस. हाउ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन? द स्टेट्स आर गिवन, सिंबल्स आर यूज्ड, ऑल दिस हेल्प अस टू इंडिकेट. हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं? चूना, राइट? इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. नाउ क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर. कभी घर में व्हाइट वॉश हो रहा हो और पेंटर को आपने नोटिस किया हो, तो जिस बकेट में वो क्विकलाइम को पानी के साथ घोल रहा है, यू विल नोटिस दैट द बकेट बिकम्स वार्म इवन विदाउट हीटिंग. दिस आर कॉल्ड, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ये मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे नेक्स्ट टॉपिक उसमें करवाऊंगी. सो क्विकलाइम dissolved in water forms a new substance which is called calcium हाइड्रोक्साइड. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए. कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड विच इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, उसकी वैलेंसी 1 होती है. सो OH ब्रैकेट and 2, right? As I told you, if you demand, then I will tell you how to write the chemical formula if you find them difficult. Now let me balance this equation. So what was my first step? In my mind I drew imaginary boxes around every reactant and every product. My second step, मैं अब ये लिखूंगी कि रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं. चलिए आप मेरे साथ साथ गेस कीजिए. राइट, द फर्स्ट वन इज कैल्शियम, और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन, और हमें क्या दिख रहा है यहाँ? हाइड्रोजन, राइट? यू वॉन्ट राइट वाटर, वाटर नहीं लिखना है, हमें एलिमेंट लिखना है, कंपाउंड नहीं लिखना है. अब हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉलम एंड राइट हैंड साइड कॉलम, बीच में एक लाइन. चलिए अब हम काउंट करेंगे. कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स? 1. कैल्शियम राइट हैंड साइड कितने एटम्स? 1. आइए अब ऑक्सीजन काउंट करें. ऑक्सीजन 1 + 1 2. ऑक्सीजन आउटसाइड द ब्रैकेट 2, सो 2. आइए अब हाइड्रोजन काउंट करें. हाइड्रोजन 2 and hydrogen outside the bracket is 2, so 2. Oh, my equation is already balanced. ये तो equation पहले से ही balanced है. So these type of equations in which number of reactants equal to number of products are there, such equations are already balanced. Your work is done. तो अगर ये equation आती है तो इस तरह की equation already balanced है. But you can check it like this. पहले चैप्टर में आप ऐसे ही चेक करोगे, पर जब तक सेशन एंड तक जाओगे आप देख के ही बता दोगे मैम इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड. तब तक आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये हम एक बार फिर पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, सो विद दिस आई रेस्ट माय वीडियो टुडे फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.